Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I am Arun Pratap Singh and I secured 705 marks in NEET UG 2023 with an all India rank of 155, and I have currently completed my first year from Jawaharlal Nehru Medical College, AMU, Aligarh, and I'm recording this intro after the whole shoot cause later on I realized that the video is a bit too long and you might not have enough time to watch the video, and even if you're not watching the whole video, I am posting a screenshot of all the points that I have mentioned in the whole video cause they are gonna give you an overview of what you have to do and don't in your first year. And I would recommend watching the whole video cause I have explained the whole first year of my as a guide to you from my perspective. And okay, without wasting of further time, let's go to the main video. Hey everyone, so finally as you know कि NEET results are out and इस बार का NEET was a totally different story. क्या ही डिस्कस करना उसके बारे में, but still many of you might be lucky enough कि although आप सबकी rank would be below than what you expected, but still many of you might be lucky enough to get a seat in medical college, and in the end that's what matters. For me too यही हुआ था that what I was expecting I didn't get it in my NEET 2023 and आपके साथ तो काफी हुआ होगा, but still if you are getting a medical college you are lucky enough and be satisfied with that. And it's gonna be a beginning of a new chapter of your life. And for those who were not lucky enough and are gonna prepare for NEET 2025, one thing that I have to say is obviously best of luck. You're gonna give your best this time, although आपने could be that इस बार भी दिया हो, but still just polish your knowledge cause you know everything. You just have to make it a complete as a whole and just integrate it all. And for those who are not gonna give your NEET again and have decided कि इस red race में और नहीं भागना, you have taken a very nice decision cause I would like to say कि इस भेड़ चाल में ज़्यादा देर चलने का कोई फायदा नहीं है. अगर आप इनिशियली ही आपको सक्सेस मिल जाती है that is great, but if it is getting delayed then कोई बात नहीं, and just go for any other stream, any other field, any other career you want. It is not the end of your life कि NEET नहीं हुआ then it's nothing. So for those who are gonna start your first year soon, and आप लोगों ने एडमिशन तो ले लिए होंगे आई गेस cause फर्स्ट राउंड की एडमिशन्स हो गए हैं. हमारे भी कॉलेज में हम देख रहे थे जूनियर्स आ रहे थे, थोड़ा कुछ लोग मुझे पहचान रहे थे. So काफी टाइम बर्बाद करने के बाद now let's come to the point that you're gonna start your first year. And फर्स्ट ईयर आपकी स्टार्ट होगी आई गेस सितंबर एंड या अक्टूबर से, एंड बिफोर दैट आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट दैट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स फॉर द फर्स्ट ईयर. सो वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. सो उससे पहले आपका होगा फाउंडेशन कोर्स, अराउंड 1 वीक का होगा फाउंडेशन कोर्स, एंड इट इज गोना बी चिल. उसमें आप जितने फ्रेंड्स हो सके वो बनाना. फाउंडेशन कोर्स में कोई पढ़ाई नहीं होती, इट्स जस्ट लाइक थोड़ा बेसिक्स बताए जाते हैं आपको एंड काफी एक्टिविटीज होती हैं. इट इज मच लाइक इतना इंटरेक्टिव सेशन होगा आपका, 1 हफ्ते चलेगा एंड यू कैन एंजॉय इट अ लॉट. बट ध्यान रखना कि उसमें आप पहले दिन से ही लाइक कॉज यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आप उसमें इन्वॉल्व रहना. आई वुड लाइक टू से कि देखते रहना, सबसे बात करना, हाय हेलो करते रहना, कॉज आप उस टाइम जितने ज्यादा वो सबसे ज्यादा मतलब बातचीत होने वाला टाइम होता है. उसके बाद कभी आप इतने नए लोगों को नहीं मिलोगे एक साथ. सो फाउंडेशन कोर्स में काफी आप लाइक इन्वॉल्व रहना, अच्छा से करना. टीचर्स भी आपको फाइनल ईयर तक के टीचर्स आते हैं, वो कुछ पढ़ा के चले जाते हैं या फिर लाइक कुछ एक्टिविटी कराएंगे. एंड इफ यू आर अहेड इन दोस एक्टिविटी देन दे आर गोना रिकॉग्नाइज यू, एंड वो बाद में आपको थोड़ा तो मतलब सॉफ्ट कॉर्नर आएगा उनके दिल में आपके लिए. So coming back to the topic कि now coming to the main subjects. तो 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंड एक पीएसएम और विच इज कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि मेन उसका पार्ट 3rd ईयर में है बट वो 1st और 2nd ईयर में भी होगा. सो उसको बाद में उसको हटाते हैं. नाउ कमिंग टू एनाटॉमी. एनाटॉमी में द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक इज दिस ग्रेज एनाटॉमी. ऑल्दो ये मेरा थोड़ा पुराना एडिशन है, सो अब तो काफी नए एडिशन आ गए हैं बट स्टिल कोई बहुत अंतर नहीं होता. And the illustrations of this anatomy book are just amazing if you may see, and the diagrams are so amazing and मतलब not even just realistic but easy to understand. Cause like मैं बताऊँ आपको Netter's Atlas, then it is a bit difficult to understand for those who are not much into diagrams. But Grey's Anatomy is I guess a must have cause it is so interesting to read. बाकी anatomy books are just रटा रही होती हैं आपको, but this is something which is gonna teach you concepts. So आप ये जरूर लें, I would recommend it. But एक प्रॉब्लम होगी, Grey's Anatomy देख के हर कोई यही कहता है कोई आप एग्जाम नहीं लिख पाओगे. You might be having some knowledge, but आप एग्जाम नहीं लिख पाओगे. एग्जाम में क्या लिखना होगा? Cause Grey's is not in points. Grey's is a paragraph. Grey's Anatomy is like a story, flow करती है. But एग्जाम में आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा, तो उसके लिए क्या करें? मेरे पास PDF है उस बुक की, आई डोंट हैव इट राइट नाउ. इट इज BDC, दैट इज BD चौरसिया, उनकी एनाटॉमी बुक. इट इज
शायद इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली बुक है बीडी चौरसिया। बहुत अच्छी बुक तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ एग्जाम्स के लिए काफी अच्छी है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेगी एंड डायग्राम्स ज्यादा अच्छे नहीं है, डायग्राम्स इसके अच्छे हैं। सो अच्छा क्या करें, कौन सी लें? मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर लाइक इफ यू आर अ नॉर्मल स्टूडेंट, या फिर बीडीसी तो कोई भी ले सकता है, एंड ग्रेस क्या है, ले लेते हैं लोग बट पढ़ते नहीं है, दैट इज अ ब्लंडर दैट दे डू। सो अगर आप ग्रेस ले रहे हैं तो प्लीज पढ़ना, कोई भी बुक ले रहे हैं तो ऑब्वियसली पढ़ना, इट्स नॉट थिंग स्पेशली कन्फाइंड टू ग्रेस। सो ग्रेस होगी, बीडीसी होगी। बाकी इसके बाद जो आती हैं वो थोड़ा लाइक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, दैट इज विश्राम सिंह, या फिर और भी कई सारी आती हैं, तो आई वोंट रिकमेंड देम, बिकॉज आप गोल्ड स्टैंडर्ड ही पढ़ो या फिर बीडीसी पढ़ो, इंडियन गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, बाकी और किसी की तरफ इतना नहीं जाने की जरूरत। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगा पर्सनली, जो कि बाकी से मैं इतना नहीं सुनता, दैट इज नेटर्स एटलस। नेटर्स एटलस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लैश कार्ड आते हैं, या तो आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, अमेजोन ने स्पॉन्सर नहीं किया है, एंड पीडीएफ ले सकते हैं आप उसकी, नेटर्स की एटलस की। नेटर्स की एटलस इज लाइक सबसे ऊपर की अगर मैं चीज कहूंगा ना एनाटॉमी में, आई वुड कंसिडर दैट, बिकॉज वो एक्चुअल पिक्स हैं, मतलब लाइक बिल्कुल प्रॉपरली ड्रॉन डायग्राम्स हैं। जैसे ग्रेज में स्टिल बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है, बट हर चीज नहीं है। नेटर्स एटलस है वो बिल्कुल आपको डायसेक्शन की तरह कराएगा, एक एक लेयर हटा के उसमें डायग्राम है, बहुत अच्छी है। सो अगर या तो यू कुड गो फॉर ग्रेस और यू कुड गो फॉर बीडीसी, उसके साइड बाय साइड आप नेटर्स की एटलस पढ़ें। नाउ एनाटॉमी में ये तो हो गया लाइक जनरल एनाटॉमी एंड मेन पार्ट जो उसका पूरा ग्रॉस एनाटॉमी है। इसके अलावा कुछ सब डिविजन्स और हैं एनाटॉमी में। वन इज एम्ब्रियोलॉजी। सो एम्ब्रियोलॉजी के लिए यू हैव लैंगमैन। लाइक देखो आई वुड से कि बहुत ज्यादा कोई फायदेमंद नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने थोड़ी पढ़ी थी, झूठ नहीं बोलूंगा, काफी अच्छी बुक है, बट एग्जाम में आएगा वो थोड़े पार्ट में से ही। बट आपको एग्जाम बेस्ड नहीं, आपको डॉक्टर बनना है, और इवन उसके बाद रिसर्च फील्ड में है, इतना कुछ है। एम्ब्रियो पढ़ने से काफी चीजें रिलेटेबल लगती हैं, जो कि रैंडम फैक्ट्स लगते हैं उससे पढ़ने से पहले। बट अगर आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, लाइक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, दैट एवरीथिंग इज गोना बी लाइक एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ एन एनाटॉमी। एंड आफ्टर दैट फॉर हिस्टोलॉजी, दिस इज द बुक Indabir. And although there are much better books too, the foreign authors, but this is the one which in our college the teachers ask us to bring this one. And again, this is an older edition. Get yourself a new one. So this is like this, and you're gonna have these microscopic pics and other things too. काफी अच्छी book है, I would recommend. Now anatomy खत्म. उसके बाद we have physiology. Physiology में I would recommend one thing, that don't go for Indian authors. The best book in physiology is this. पता नहीं कौन सा एडिशन है, बट दिस इज द बेस्ट बुक फॉर फिजियोलॉजी, गाइटन हॉल। And the thing is, this is so easy to understand and has a lot of concepts. In physiology, there are two types of books, I felt. One is easy to understand and the other is which have a lot of concept, and this is just in the middle of both. काफी इंटरेस्टिंग है, डायग्राम्स भी अच्छे हैं, एंड द लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग मैंने बता रखा है। बट एक चीज है, इट्स ह्यूज, सो यू हैव टू मेक नोट्स विद इट। एंड अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, यू आर गोना रीड इट वंस एंड देन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एंड इट्स अ नाइस बुक, एंड फिजियो इज one of the like most important subject, because this is gonna be your core in the whole medicine. You have to know how basic human body works. After this, another highly recommended book of physiology is this, Genome. Genome is a much better book in comparison of content, if you are comparing the content of both Guyton and Genome. But the thing is, it is like NCERT. एक लाइन में बहुत कुछ लिखा हुआ है and you might not be able to comprehend much. And मैंने नहीं कर पाया था इसको ज़्यादा, cause Guyton I preferred. And बाकी like I used to see some videos from YouTube and all, so that was enough for my content knowledge. But it is also a nice book. एक लाइन में काफी information होगी. Now coming to the third subject, which I felt you might think is a bit boring, cause thoda hai boring, but it is biochemistry. And for biochemistry, this is the book that I used. और भी काफी सारी बुक हैं, लाइक वासुदेवन इज एन इंडियन ऑथर, उनकी बुक काफी लोग यूज करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड वासुदेवन से थोड़ी अच्छी इज लिपिनकॉट। लिपिनकॉट बुक, ये पता नहीं कौन सा एडिशन है, जस्ट प्लीज इग्नोर दैट, बट इसका कंटेंट मुझे अच्छा लगा लिपिनकॉट का, एंड अगेन लैंग्वेज इजी है, एंड ये बहुत अच्छी चीज है। लाइक इन दी एंड लिपिनकॉट में समरी में देयर इज अ होल इंटीग्रेशन ऑफ द चैप्टर, एंड काफी फ्लो चार्ट्स हैं, एक सिंगल कलर टोन में पूरी बुक नहीं है, एंड कलर्स भी हैं। बाकी एक और कुछ चीज प्रैक्टिकली अच्छी कि लिपिनकॉट में ना हर पेज के साइड में आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है, तो आप वहां पे भी नोट्स बना सकते हो, मतलब लिख सकते हो शॉर्ट में। सो नोट्स आपको शायद ना बनाने पड़े। अंडरलाइन करना बहुत अच्छी बुक है। एंड अगेन द लास्ट बुक वी हैव इज हार्पर। हार्पर ये मान लीजिए जैसे बायोकेमिस्ट्री की गेनोम है, एंड अगेन एक लाइन में काफी नॉलेज है। थोड़ा यू माइट फील दैट
the language is a bit difficult to understand and इतना मतलब it is an amazing book. काफी content है, the content is better than Lippincott, but still the language is a bit difficult. And biochemistry में I would recommend, दोनों अच्छी हैं. And if you are able to read, then Harper, go along with this. And in physiology, your first preference could be Guyton. And if you have time enough, then Genon के clinicals देख लेना. So video expectation से लंबी जा रही है, but still I'm gonna tell you a lot of stuff. Now coming to the next part, that is notes. So notes, like खुद के तो आपको बनाने हैं, I would recommend a lot cause self-made notes are the best thing in any whatever subject you are reading. Like any course, self-made notes या handwritten notes are the best. But if you are like opting for any other notes, like कोई बने हुए आपको मिल जाए, then there are 3 notes which I would recommend for each subject. Like हर subject के लिए, anatomy के लिए what I used and like everyone in our batch used was E-Gurukul के अश्विनी sir के notes. You could take a subscription of E-Gurukul. It's nice and especially for anatomy. Like बहुत लोगों ने देखते हैं and हमारे college का it's a trend that like you are gonna face it whenever you are going any other college. There is some other trends for other books and ये like they are like हमारे इसमें Lippincott was the most used book in biochemistry, but in other colleges Harper is and something they are gonna be different. And so for anatomy notes, Ashwini sir, E-Gurukul. Now for physiology, what I used was EduClub के notes. EduClub physiology notes are amazing. ये सारे notes you could find in Telegram या फिर like मुझे message कर देना कहीं Telegram पे कहीं किसी पे, I would give you उस पे. And otherwise for biochemistry, जाम्बुलकर सर के notes. So जाम्बुलकर सर YouTube पे है, उनकी videos काफी अच्छी हैं and exam के लिए तो best हैं. So anatomy में अश्विनी सर, for physiology you have EduClub and like और भी आशीष सर की videos हैं, notes हैं, and for biochemistry you have जाम्बुलकर सर. So coming to labs, cause notes का part हो गया, books हो गया, and labs में क्या होता है? So first anatomy lab, again I would like to start. So main lab is dissection hall, that is a DH which you are gonna call, and cadaver का cutting वाला part. It is interesting. One thing that I feel कि either you are going in a good college like in AIMS and all, then आपका cadaver to student ratio is gonna be high, and you will be having enough ample amount of time and opportunities to dissect the cadaver. But if you are in a college which there is not like you have just 1 or 2 cadaver for 100 plus students, then आप इनिशियली तो इंटरेस्ट आएगा, बट विद टाइम एज टाइम पासेस ऑन आप इंटरेस्ट लूज करते जाओगे. सो यू डोंट हैव टू डू दिस. इस ट्रैप में मत गिरना प्लीज. डायसेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है. जस्ट आस्क योर टीचर्स दैट प्लीज मैम अलाउ मी टू डायसेक्ट, एंड आगे आगे रहोगे ना. स्टार्टिंग में काफी सारी भीड़ होती है, बट बाद में जाते जाते वही 2-3 बंदे ही कर रहे होते हैं डायसेक्शन. सो be one of those 2 and 3 students, that is gonna help you a lot. And बाकी हिस्टो की लैब होगी आपकी, हिस्टोलॉजी की. इट्स सिंपल, माइक्रोस्कोप देखना है, पढ़ना है एंड डायग्राम बनाने हैं. वन थिंग आई वुड से कि प्लीज डायग्राम वाला पार्ट ना हिस्टो लैब में बना लेना, एंड डीएच में ट्राई टू डू मोर ऑफ डायसेक्शन वर्क. डोंट just draw diagrams, cause diagram बनाने के लिए you have hostel or home where you are staying, and like for the DH part please focus on dissection. आपको दोबारा कैडेवर नहीं मिलने वाला अपनी पूरी एमबीबीएस आगे भी. लाइक कैडेवर इसी साल मिलेगा और बाद में भी आपको लाइफ पेशेंट मिलेंगे ऑब्वियसली, बट डेड किसी बॉडी पे आप एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहना चाहिए, सॉरी, बट लाइक डायसेक्शन यू वोंट बी डूइंग. सो दिस इज योर ओनली अपॉर्चुनिटी. बहुत फायदा उठाना उसका. बाकी ऑस्टियोलॉजी लैब इज देयर, हड्डियों का पढ़ाया जाएगा, बोन्स ऑल, तो वो अच्छे से करना, कॉज लाइक बोन्स तो आनी चाहिए. देन कमिंग टू फिजियोलॉजी में आपकी 3 लैब्स होती हैं. तो एनाटॉमी में 3 हो गई, डायसेक्शन हॉल, हिस्टोलॉजी एंड ऑस्टियोलॉजी. फिजियोलॉजी में भी 3 लैब्स हैं, विच इज ह्यूमन लैब, देन हेमाटोलॉजी लैब एंड कैल इज कंप्यूटर असिस्टेड एम्फीबियन लैब. कैल लैब वही है जिसमें पहले फ्रॉक्स का डायसेक्शन होता था, बट अब वो एम्स दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं होता है इंडिया में. सो इन तीनों लैब में आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन लैब. ह्यूमन लैब काफी हद तक सीएनएस से लिंक है, और लाइक ह्यूमन 1 और ह्यूमन 2, हमारे में तो ये 2 पार्ट थे, ह्यूमन 1 ह्यूमन 2. इसमें वो होता है कि एक्सपेरिमेंट आप आपस में ही करोगे कि बीपी कैसे लेना है, आईसाइट चेक करना थोड़ा बहुत, थिंग्स लाइक स्पायरोमेट्री की लंग कैपेसिटीज क्या होती हैं, बेसिक होगा सब. एंड डिस्क्लेमर अलर्ट कि जो बॉयज होते हैं उन्हीं को सब्जेक्ट बनना होगा इसमें, एंड जो पूरा बैच आएगा आपका वो लाइक 2025 था हमारे में, तो कि 50 स्टूडेंट्स ह्यूमन में, 50 स्टूडेंट्स हेमेट में, 50 स्टूडेंट्स कैल में. उनमें से जो 50 ह्यूमन में थे वो 2025 में डिवाइड हो गए थे ह्यूमन 1 ह्यूमन 2. ऐसे था, बाद में रोटेशन चला था, लाइक
हिमैट वाले कैल में जाएंगे, कैल वाले ह्यूमन वाले हिमैट में, ऐसे रोटेशन होगा। तो आपकी तीनों लैब्स कवर होंगी। सो ह्यूमन में जो बॉयज होंगे दे आर गोना बी द सब्जेक्ट एंड उन पे एक्सपेरिमेंट होंगे मोस्टली, लाइक शर्ट वर्ट ओपन करनी पड़ेगी उन्हें। एंड डोंट बी अफ्रेड यार, आपके ही बैचमेट्स हैं, यू गोना स्टिक विद देम फॉर द रेस्ट 5.5 year एंड सून, सो जस्ट बी कंफर्टेबल। एंड तो फिजियो में ये हो गया। हिमैट में खुद को प्रिक करना होगा आपको, इट इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर सम आई गेस, बिकॉज इट इज योर बहुतों का तो एटलीस्ट इफ यू आर नॉट अ साइकोपैथ इट्स गोना बी फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोना प्रिक योर ओन सेल्फ एंड ड्रिप सम ब्लड। सो हर दिन करना पड़ता है, मतलब ऑलमोस्ट जब भी लैब होती है यू हैव टू डू दैट। एंड उसके लिए नीडल लेनी होती है, दैट टाइम यू विल बी हैविंग दोज नीडल्स। लाइक लोग डायबिटिक पेन लेते हैं या सिंपल एक जो नीडल आती है उसका वो लेते हैं, अदरवाइज एक लैंसेट आती है स्पेशली प्रिक करने के लिए। आई यूज्ड टू टेक द नीडल एंड दैट टू लाइक काफी मोटी वाली लेता था, बिकॉज एक बार करो काफी ब्लड आता है। डोंट बी अफ्रेड, मैं आपको भी बता दूं, इस साइड करते हैं, इस फिंगर की, रिंग फिंगर की, मतलब कोई भी इधर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर, उसमें ये जो साइड होती है ना टुवर्ड्स योर लिटिल फिंगर, इधर करते थे हम। सो काफी मजेदार लैब है, मुझे पर्सनली बेस्ट लैब लगी हिमैट। उसके बाद कैल इजी है, कुछ नहीं करना होता, बस जाओ बैठो पढ़ो। बायोकेम सबसे इजी लैब है सब में, बस बायोकेम में आप ना जो भी पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा रिवाइज करते रहना। सो ये तो मेजर पार्ट हो गया आपका तीनों सब्जेक्ट्स का। आई हैव गिवन यू बेसिक स्ट्रेटेजी कि हर सब्जेक्ट में क्या करना है, अदरवाइज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कॉलेज। काफी चीजें डिपेंड्स एंड वेरी ऑन विच कॉलेज यू आर हैविंग, बिकॉज दे आर ट्रेंड्स फॉलोइंग द कॉलेज। नाउ कमिंग टू सम मिसलेनियस टॉपिक्स, मैं शॉर्ट में सम अप करना है इनको, विच इज फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए द बेस्ट थिंग दैट आई वुड रिकमेंड इज लाइक दो फैक्टर है मेरे। एक तो डेली डिवीजन, डू डेली डिवीजन, कॉज उससे अच्छा कुछ नहीं है। फॉर द नीट एस्पायरेंट्स टू आई यूज्ड टू गिव दिस एडवाइस, आई यूज्ड टू डू दिस। नीट मैंने एमबीबीएस में तो नहीं किया, नॉट गोना लाई, मेरी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बहुत अच्छी नहीं गई, कॉज आई वाज एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड, बट सेकंड ईयर से होप है अच्छी जाए, लाइक हाँ पास तो हो जाऊंगा। और फर्स्ट ईयर का यही है, यू हैव टू डू डेली रिवीजन एटलीस्ट 1 hour, जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से कर लो। सेकंड जो चीज मैं कहूंगा कि आप वहां कॉलेज में 8 घंटे हो गए, फॉर 8 to 4 बस 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा, सो यू हैव 7 hours. Try to be as productive as you can in those 7 hours, cause like initially you might be having a momentum to study, but after that the post NEET inertia which is called कि फिर पढ़ना छोड़ देते हैं, नीट के लिए इतना पढ़ा है आपने and then you are like first year में मजे करने हैं। Okay, do fun obviously, मेरी भी वीडियो में इतना मैं मजे करता था, but one thing is कि don't sacrifice your time which you are in spending in the college, cause वो 7 घंटे आप बात करोगे उससे अच्छा है that just study those 7 hours and मतलब उसमें थोड़ा फन करो, 7 hours अच्छे से पढ़ो, बाद में आप उसके बाद you could just enjoy yourself। अदरवाइज आपको क्या होगा कि आप उधर भी अच्छे से पूरे टाइम मजे नहीं कर पाओगे एंड बाद में भी आपको पढ़ने का मन करेगा और मतलब ओवरऑल अच्छे से मजे आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये है कि कॉलेज के टाइम में चिल रहो और थोड़ा लाइक जस्ट रेगुलर स्टडी करनी है आपको कॉलेज टाइम में जरूर करना। लाइक इवन इफ यू आर हैविंग अ लेक्चर एंड आपको लग रहा है दैट द टीचर व्हाटएवर द टीचर इज टेलिंग यू हैव ऑलरेडी रेड दैट और यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, सो पीछे बैठो कुछ और पढ़ो, बट पढ़ो कॉलेज में लेक्चर टाइम में पढ़ो, कुछ भी पढ़ो आई एम सेइंग, क्योंकि उसके बाद यू आर फ्री, उसके बाद कभी भी दिन में 1 घंटा रिवाइज कर लो और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी। ये मेजर पॉइंट्स थे। एंड उसके बाद ये है कि बैकलॉग अवॉइड करना है आपको, कॉज बैकलॉग एक बार अगर उस स्टेप में आ गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना। पीजी के लिए अभी से प्रिपेयर करने के पागल हो क्या, तो यू कुड टेक एनी सब्सक्रिप्शन बट नॉट PG oriented, just build your concepts, cause first year is the one in which you are one of like the freest person and you don't even have to do postings, so आपको concepts बनाने हैं अपने अच्छे। That's why I recommend books लेनी है, cause in books से concepts होंगे। Notes if you are having just ready-made notes तो PG oriented ज्यादा होते हैं and books को आप avoid नहीं करना है। ECE एक सब्जेक्ट लाइक पार्ट आता है विच इज अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, जो पहले नहीं था बट नाउ इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो उसमें आपको क्लिनिकल केसेस दिखाए जाते हैं एंड just make notes of them, they are important and they are gonna help you a lot। like डायबिटीज की जब EC आएगी तो उस टाइम आप डायबिटीज जितना डेप्थ में पढ़ोगे ना दोबारा कभी इतना नहीं पढ़ने वाले आप, मतलब फर्स्ट ईयर में दोबारा नहीं पढ़ोगे इतना। जब अथेरोस्क्लेरोसिस की आएगी तो आप जितना डेप्थ में पढ़ोगे दोबारा नहीं पढ़ोगे। वेरिकोस वेन की आएगी, हर लाइक फिजियो एंड बायोकेम में आएगी। एंड एक और लाइक हमारा हर 4th सैटरडे या फिर मंथ का लास्ट सैटरडे जो होता था उसमें वी हैड दैट विजिट, मैंने व्लॉग भी डाली थी। एक गांव में रूरल एरिया साइड जाके we were appointed 3 families and we have to just take their
मंथली रिकॉर्ड की हाउ मेनी मेंबर्स या फिर क्या, न्यू बर्थ, न्यू डेथ, कोई बीमारी वगैरह. इट्स इंटरेस्टिंग, बहुत मजे आएंगे आपको. एंड ऐसी ट्रिप लगती है महीने के एंड में कि एक पूरी पिकनिक जा रहे हैं, बट काम भी करना होता है थोड़ा बहुत. पिकनिक ही नहीं है, सिर्फ एंजॉय करना, खूब फोटो वोटो लेना. देन कमिंग टू सम अदर एक्टिविटीज. सो अदर एक्टिविटीज में ये है, इफ यू आर लकी इनफ तो आपके कॉलेज में फेस्ट होगा. पार्टिसिपेट अ लॉट, पार्टिसिपेट लाइक बिल्कुल पागल होकर पार्टिसिपेट करना है फेस्ट में, हर चीज में पार्ट लेना. डोंट थिंक कि फेस्ट के टाइम पे आपको पढ़ना है. दैट 1 वीक इज लाइक नो स्टडी एट ऑल. जस्ट एंड जस्ट चिल. उससे मजेदार टाइम फर्स्ट ईयर का नहीं आएगा. फेस्ट यू कैन एंजॉय लॉट. आफ्टर दैट कॉम्पिटिशंस आते रहेंगे. लाइक इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम, देन ऑब्वियसली आपको पता भी नहीं चलेगा कब कॉम्पिटिशन आ गया कब चला गया. बट इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड दोस थिंग्स, देन यू आर गोना एंजॉय देम अ लॉट. जस्ट लाइक हैव जनरल नॉलेज दैट व्हाट अदर. नोटिस बोर्ड देखते रहना. यू माइट बी हैविंग व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैसेज आ जाएगा. दिस क्योंकि फर्स्ट ईयर इज द फ्रीएस्ट थिंग. यू डोंट हैव टू डू एनी पोस्टिंग एंड ऑल. सो it will be interesting. Even if it's like an art competition and you're not at all interested in arts, just give it a shot. You're gonna enjoy it. You're not gonna regret it. Then there are some organizations or like which are made by the medical students of India and like even on a global scale, like MSAI, IMA वगैरह. So what, like MSAI, I'm a member of that, and I even have a post of local exchange officer in MSAI for my college. So that is extremely interesting because they have regular workshops and like meetings, and even in other cities, Pune, Surat, Delhi and all. So you are gonna visit there if you want and just explore. This is the time for you to explore. काफी इंटरेस्टिंग है. लाइक एक गोल लगता है. इट्स नॉट जस्ट फर्स्ट ईयर, नॉट इवन फर्स्ट ईयर. MBBS is not at all about just books. And if you are inclined towards those things, meeting new people, greeting and all, having some post and doing some work, whether it's like there are many branches and many committees in such organizations, be a part of them, I would like to say. After that, focus on your hobby. सबसे important, hobby को नहीं छोड़ना है. I too, like although उतना नहीं कर पाया which I was expecting, but still I opened a YouTube channel, vlogging करी मैंने, and then खूब just explored each and every cafe of the city. And like I as you might know, I do a bit of art and all, so मैंने वो भी continue करा अपना. And even like टीचर्स को भी पता चला that I am into those stuff. और फेस्ट हुआ था तो उसमें भी मैंने पेंटिंग बनाई थी. एंड मतलब it just go on with your hobby. I cannot emphasize more on this topic. बाकी final thing is, if you are inclined toward research is also a new platform which is emerging, and recently काफी लोग are interested in that thing. And if you have a plan for going to US after giving USMLE and all, so research is gonna be like a pivot point for that. And अभी से आप research first year से you could start. ICMR is an again organization which is gonna give you opportunities. So आप अभी तो ध्यान मत देना, but later on ask your seniors that how to deal with that. Okay, sorry, वीडियो बहुत लंबी जा रही है. Then some would recommend things I would like to say. First is like it's not essential. हाँ, पहले essentials पे आ जाते हैं. Books देखो, हर बुक मत लेना. If you have a tab, then don't fall for each and every book. Initially just एक बुक लेना. Even if you don't have the tab, just take one book. और first day ही कोई जाके आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है. Just see कि आपके कॉलेज में क्या चल रहा है. ये नहीं like मैंने दिखा रहा हूँ ना इतनी बुक्स ले ली. ऑनेस्टली मैंने इनमें से आधी भी नहीं पढ़ी. गेनोंग और हार्पर तो मेरी बिल्कुल रखी हुई थी साइड में, छुई भी नहीं मैंने. सो लाइक एक आध चैप्टर पढ़ लिया बस. सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. जस्ट बाद में बुक लेना, बी चिल. अभी जस्ट सी कि आपके कॉलेज में व्हाट्स द ट्रेंड. Then PDF, if you have tab, then go for PDF. And even if you don't have the tab, you phone तो होगा ही obviously, कहीं तो देख रहे हो वीडियो, then go at least have the PDF of all Atlas. I would like say कि 3 Atlas हैं which are amazing. Natters Atlas के बारे में सब जानते हैं. For obviously anatomy, there's Natters Atlas and it's amazing. मतलब I can't emphasize more on the fact that how great of a Atlas is Natters. And after that, for biochem and for physiology, like even some first year student might be thinking कि इनकी भी एटलस आती है. इट्स थीम्स, THIEME, if I'm not wrong. बहुत अच्छी एटलस है, इसको जरूर देखना. लाइक बायोकेम में भी यू माइट थिंक कि बायोकेम में कौन से डायग्राम होंगे, और उन्होंने उसको भी डायग्रामेटिक फॉर्म में इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया है. उससे अच्छा मतलब बायोकेम और उनकी अगर अपनी थीम्स पढ़ ली ना एटलस, तो ये बुक्स तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आएंगे. एवरीथिंग वुड बी अ फ्लो चार्ट फॉर यू. आफ्टर दैट कि भाई टेलीग्राम पे, हाँ दिस इज समथिंग जो कि एक हैक है या फिर आप बाद में करोगी. टेलीग्राम पे यू आर गोना फाइंड ईच एंड एवरी बुक. जस्ट गो ऑन एनी लाइक मेडिकल बुक्स
channel on Telegram or group, and like the one which I was following was Medflix, 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 and you're gonna get everything. The last essential is this thing which you're gonna fight for. This is the thing that you have been fighting for your whole NEET preparation, white coat. And यहाँ पे वो भी like आप लगा सकते हैं, we had this badge जिसमें हमारा नाम लिखा है, other white college logo भी हो सकता है, but I didn't prefer that. And एक इसमें कहूंगा कि प्लीज चेक द फैब्रिक, कॉज कई तरह के फैब्रिक आते हैं. वन इज अ थिकर वन जो लगता अच्छा है, बट इफ यू डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एसीज इन योर कॉलेज, देन दैट थिक फैब्रिक, वो भी इंडिया से वेदर में, इज अ कर्स. सो इनिशियली गो फॉर लाइट फैब्रिक वाले, लाइक हल्के कपड़े वाले वाइट कोट. दोज विल बी मच ब्रीथेबल फॉर योर बॉडी एंड वोंट बी सफोकेटिंग यू. After that, some would recommend, I would say, first is this thing. This thing is the most important for me. Like, it's not an essential thing, but मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है. This is the tab. And okay, now थोड़ी controversial चीज़, Samsung या iPhone. I am a Samsung fan, but you could obviously go for iPad and all. कि इसमें the things is कि notes बनाना easy है. Initially मुश्किल लग सकता है. I too, till my whole NEET preparation, I was a totally paper person. I always recommended paper, but once I started using this tab, I felt कि this is game changer. Cause notes banana is much easier. You can easily edit your notes, and one thing which, like, even for I see people who are using tab, they don't use that thing much, is the amount of photos you could add in your notes. In your physical notes, pen paper wale, you can't add much pics, but tab में just take a screenshot and add that into your notes. Like अगर मैं दिखाऊं आपको some of the notes that I made, so you could easily see the amount of pictures I used is just tremendous. For anything I study, for any topic I study, the amount of pics I use, they are, because I have a photogenic memory, and see, I can't do this on a normal tab. I can't do a normal pen paper notes because I'm just gonna write the thing, and visualization होना चाहिए. You are gonna be a doctor. कोई आप normal वो तो बन नहीं रहे क्लर्क की या फिर कुछ भी चीज की आपको बस लिखने वाला काम है. At least you have to have a visual image of anything that you are having. Especially there are many diseases, and anatomy तो पूरा ही photo based है. Anatomy के मैंने notes नहीं बनाए थे, but I would recommend. मैंने physio के notes ज़्यादा बनाए थे. So do this thing. Just use as much as photos possible. This, see. Each and every RBC type की, okay, this RBC में ये मिलता है. I had a pick for that, so go for that. It is gonna help you a lot. बाकी some other things which are like not essential, but still you might, if it would be better if you are having them, this पता ही होगा आपको. This is the stethoscope. आप लगा के फोटो खींचने वाले हो काफी. इट इज लाइक फर्स्ट ईयर में ज्यादा यूज नहीं होता है. इन ह्यूमन 2 लैब हमें यूज हुआ था, एंड देयर इवन दो आई नेवर टुक माय स्टैट टू देयर. आई वाज जस्ट यूजिंग द वन प्रोवाइडेड टू अस बाय द लैब. फॉर डाइसेक्शन हॉल यू हैव टू हैव दिस, which is the glove box. Just use as much as glove possible. I know people जिन्होंने कभी glove पहना ही नहीं DH में exams को छोड़ के, cause they were not at all interested in that. Okay, if you are not interested, क्या कर सकते हैं, but I would say have a glove box and just go on doing dissections. इवन अगर आपके पास एक भी कैडेवर होगा ना, सिंगल कैडेवर, एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा ना आपको करने को. जस्ट डोंट इग्नोर दैट थिंग. देन डाइसेक्शन किट, इट इज नॉट एन एसेंशियल एज आई सेड, एंड just have it if you are willing to. And again, like I would say, if you are interested in dissection, have a dissection kit, but it's totally not at all any kind of essential. Okay, so ये हो गया. Then अब बहुत लंबी वीडियो जा रही है, आई एम थिंकिंग आप बोर हो गए होगे. सो कुछ चीजें मैं एंड में समराइज कर दूं लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ. ओके, सो कमिंग विद फ्रेंड्स की बी इन कॉन्टेक्ट विद एज मेनी पीपल एज यू नो, वेदर इट्स योर बैचमेट और इट्स योर सीनियर. फ्रेंड्स बनाओ जितने क्लोज. हर किसी के इतना नहीं जाने की जरूरत है कि आप हर किसी के साथ हर जगह घूम रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. लाइक हर किसी से कांटेक्ट रखना है, दुआ सलाम हाय हेलो करते रहो, बट ये नहीं कि आप हर किसी के साथ ही बिल्कुल टाइम स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज आप हर किसी को ऑब्वियसली इतना अटेंशन नहीं दे सकते. एंड इफ यू आर गिविंग एवरीवन द सेम अमाउंट ऑफ अटेंशन, देन ऑब्वियसली लाइक इतना टाइम आप कहां से रहा है, एंड योर क्लोज फ्रेंड्स माइट फील कि यू आर नॉट गिविंग देम इंपॉर्टेंस. समथिंग इनिशियली काफी सारे फ्रेंड्स होंगे, एंड बाय द एंड आपके लाइक लिमिटेड फ्रेंड्स रह जाएंगे, एंड इट्स ग्रेट. Just be in contact with everyone. Foundation course आपका initially is gonna be your icebreaker for every single person. And like I told you previously in the video कि 50-50-50 if you have the 150 strand in your batch, then ऐसे like 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था हमारा. So in the end हमारा interaction is, मेरा interaction personally mostly of after the foundation course and after the fest सिर्फ A batch में ही है, the 1 to 50 roll number that I am in.
उसी में है, कॉज आई डोंट नो मच अबाउट पीपल इन द बी बैच और स्पेशली सी बैच तक आते आते। सो ये होता है कॉज इंटरेक्शन कम होता है, अपने उन्हीं 1/3 बच्चों में इंटरेक्शन रह जाएगा आपका। आफ्टर दैट मतलब स्पेंड करना है आपको टाइम दोस्तों के साथ, बट वेस्ट नहीं करना। हफ्ते में 1 बार चले जाओ, 2 बार चले जाओ, हर दिन टाइम बर्बाद करने की ऑब्वियसली कोई नीड नहीं है। पार्टीज करो, खूब चिल करो, और मैं यही कहूंगा पार्टी करो, लाइक बर्थडे पार्टी रखो। एंड इफ मजेदार होता है इफ यू हैव अ ग्रुप, देन ग्रुप में एक का बर्थडे है फिर दूसरे का बर्थडे है, एंड इट्स अमेजिंग कॉज दोबारा इतना खाली टाइम आपको नहीं मिलने वाला। बाकी इफ यू आर हैविंग सम टाइम एंड इफ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी और सपोर्टिव पेरेंट्स एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स, देन गो फॉर अ ट्रिप। मैं नहीं जा पाया था बट इट्स इंटरेस्टिंग। Then some other miscellaneous advice I would like to give is balance maintain रखना है। Again कि you have to be studious too and you have to have fun all along your first year. Don't be just a rectification वाला बंदा कि you are just mugging up everything and not at all interested in the worldly affairs. Just like explore but खो भी मत जाना that आपने studies ignore कर दी। Just have maintain a balance and fresh start होने वाला है। हर चीज जो आपने अब तक स्पेशली कमी करी होगी, इवन इन योर पर्सनैलिटी, बाकी सब तो पढ़ाई की चीज आपको मैंने बता दी। पर्सनैलिटी बेसिस पे अगर मैं कहूं, देखो आप इनिशियली ही जो अपने सबके दिमाग में इमेज बना लोगे ना, वो बहुत प्रोमिनेंट होगी, बिकॉज बाद में आप लिमिटेड लोगों से ही क्लोज कॉन्टेक्ट में रहोगे जो आपको असली में जानेंगे। बट बाकी लाइक 150 बच्चों में से मुश्किल से 10-12 होंगे जो आपको क्लोजली जान पाएंगे। बाकी सबके जो आप फर्स्ट इंप्रेशन बना लोगे वही रहेगा। आप बहुत डम दिख रहे हो कि बस पढ़ाई कर रहे हो, तो वही इमेज बन जाती है। एंड सो लाइक मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट ये है कि हाँ, बी एक्टिव रहना एंड लोगों से जाके बात करो। कोई बात नहीं, कोई ईगो की बात नहीं है कि यार मैं क्यों जाके उससे बात करूं, वो क्यों नहीं कर रहा, उसमें मत करो, जाओ सबसे बात करो। क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट। एंड बाकी देखो कुछ चीजें, हर तरह के फ्रेंड मिलेंगे। एक चीज में मैं कहूंगा प्लीज मत करना कि जा जाके लोगों की एक दूसरे से बुराई कर रहे हो। मैं करता था ना, इसलिए बता पा रहा हूँ। जस्ट डोंट डू दैट। जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू वन पर्सन एंड सेइंग कि या वो ऐसे करता है एंड देन टू द अदर दैट ही इज, मत करना। दिस इज अ वेरी चीप हैबिट एंड पीपल आर गोना like they are gonna observe. People are gonna observe and एक चीज याद रखना, you are in MBBS, अब तक जो भी superiority inferiority complex था सब भूल जाओ। I am telling you on a personal basis. I thought that I had 705 marks, मैं कुछ अलग ही मानो होगा, but ऐसा नहीं है। Each and every person they like qualified your NEET. They came after cracking the NEET exam and they are extremely intelligent in their fields and you just compare करना है आपको on a healthy basis, but कोई कंपटीशन आपको बहुत बुरा वाला मत रखना एंड लाइक सुपीरियोरिटी नहीं रखनी है। यू आर नॉट अ गॉड और समथिंग कि आप आ गए डॉक्टर बन गए, भैया हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। जस्ट बी हम्बल, जस्ट बी डाउन टू अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉज वॉट यू हैव योर इमेज इन अदर पीपल्स ब्रेन एंड देयर माइंड इज विल ऑब्वियसली अफेक्ट you if you are a normal person. If you are some psychopath, then I don't know, but in you there a healthy environment, although बाकी factors भी important करते हैं, but your nature is the one which is gonna dictate the most. आफ्टर दैट कोई डम नहीं है, कोई डम नहीं होगा उसमें। आप शाणे मत बनना कि ये किसी को क्या पता चल रहा है, ये भैया सब नीट निकाल के आए हैं, सब होशियार हैं, सबको सब समझ आता है। अपने नेचर का ध्यान रखना, इरिटेटिंग नहीं बनना ज्यादा। आई एम टेलिंग, मैं था इसलिए बता रहा हूँ। सो नेचर का ध्यान रखना एंड यही है, ज्यादा की बुराई करना, डबल फेस होना, इधर कुछ कहना, ये काम मत करना। इतना भी नहीं करा मैंने, आई एम टेलिंग यू कि बिल्कुल आप मुझे वैम्प समझ लो। फाइनली लास्ट एडवाइस मैं ये कहूंगा, सेव सम मनी। अभी से आप पैसे बचाने की आदत डाल लो, हैव सम सेविंग्स, कॉज इवन इफ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप और समथिंग, दैट सेव्ड मनी विल हेल्प यू अ लॉट। एंड मनी सेविंग तो एक जनरल चीज है, हर किसी को फायदेमंद होता है। सो फाइनली वीडियो बहुत लंबी चली गई एंड आई एम ग्लैड इफ यू आर स्टिल if you watch the whole video, and I was just planning on this video for a long time. Finally it came out and today is 1st September, the exact day that I started my first year journey. आज हमारा एडमिशन होके व्हाइट कोट सेरेमनी थी। व्हाइट कोट सेरेमनी आपकी भी होगी, इट इज इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी बोरिंग भी होती है, बट स्टिल बहुत मजे आते हैं दैट यू आर सीइंग एवरी पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो गो फॉर दैट। काफी चीजें हो गई, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. Okay, so see you soon in the next one. Till then, bye.